Hello student, today I will teach you the laws of refraction by the Huygens wave theory. First we have to draw the figure. See carefully how we draw the figure. This is a separating plane which separates the two medium. Medium 1 which is of the refractive index mu1 and medium 2 of refractive index mu2. Refractive index mu2 such that mu2 is greater than mu1. That means mu1 is the optically rare and mu2 is the optically denser medium. Suppose that a wavefront AB, this is a plane wave front which incident on the separating plane PQ at an angle I, at an angle of incidence I. Now this is the ray OA, another ray O dash B, which advance see, according to the Huygens wave theory, AB is the plane wavefront. Each point on the AB wavefront act as a fresh source of the disturbance. That means from each point the secondary wavelet is transmitted in the medium. Suppose that a secondary wavelet transmit in the medium from B and it incident at B dash of the separating plane PQ. In time t समय में B से सेकेंडरी वेव चलकर इस mu1 मीडियम में B डैश से PQ सेपरेटिंग प्लेन के B डैश पर इंसिडेंट, उतने ही समय में A से चलकर सेकेंडरी वेवलेट A डैश पर पहुंचती है. कहां पहुंचती है? A डैश पर. यानी BB, if the velocity of the light in medium 1 is V1, ना, V1, in medium 2 is V2, then BB dash is equal to V1T and AA dash is equal to V2T, where V1 is the velocity of light in medium, rare medium, mu1, and velocity of light in denser medium of refractive index is V2. Then the distance covered by the light AA dash equal to V2T and BB dash equal to V1T, or T equal to BB dash by V1 and T equal to AA dash bata V2. That means BB dash by V1 is equal to AA dash by V2. Now, assuming A as center and radius as AA dash V2T, we draw a sphere. We draw a sphere and draw a tangent plane from B which touches the sphere at A dash. We draw the sphere because we have to find the new position of the wavefront after time t. So we have to find the
wavefront, new position of the wavefront after time t, we assuming the what distance covered by that the initial wavefront producing from A covered, assuming as the radius and draw the sphere. It clear? That is why we draw the sphere to find the new position of the wavefront. A is the touch. Now we see here, this is the normal and also here it is the normal. Since it is clear that there is a going in denser medium, so it bend towards the normal. Bend towards the normal. A B dash, A dash, B dash, A dash, B dash. When we draw this tangent plane, A dash, B dash will be the new position of the wavefront AB. New position of the wavefront AB. That means A dash, B dash will be the refracted wave front in मीडियम μ2. अब हम इसी चीज को फिर से समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सबसे पहले हम ये देखें कि PQ एक सेपरेटिंग प्लेन है जो दो माध्यमों को, दो मीडियम्स को अलग करती है. एक मीडियम ऊपर μ1 और नीचे है मीडियम μ2. इस प्रकार से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम μ2 सेकंड मीडियम इज हायर देन द μ1. इसका अर्थ हुआ कि μ2 ऑप्टिकली डेंस है और μ1 ऑप्टिकली रेयर है. मान लिया कि कोई प्लेन वेव फ्रंट है AB जो μ1 मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वह सेपरेटिंग प्लेन PQ पर इंसिडेंट करती है, मेकिंग द एंगल. सेपरेटिंग प्लेन से कितने एंगल I बनाती है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है. मान लिया कि जो लाइट की स्पीड है इन μ1 मीडियम इज v1 और μ2 मीडियम में v2 है. वी हैव टू फाइंड. अब हमें मान लिया कि कोई समय कोई इंस्टेंट टाइम ले लें कि उतने समय में वेव फ्रंट जो है कहां तक पहुंचा. तो सबसे पहले हाइगन्स वेव थ्योरी के अनुसार वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है. इट इज एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस. यानी प्रत्येक बिंदु से वहां सेकेंडरी वेवलेट जो है प्रोड्यूस होती है. तो मान लिया कि किसी समय t में सेकेंडरी वेवलेट B से चलकर B डैश यानी सेपरेटिंग प्लेन पर इंसिडेंट होती है. तो कितना डिस्टेंस BB डैश ट्रेवल की, तो BB डैश इक्वल टू v1t. ठीक उतने ही समय में यानी t समय में A से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट A डैश तक पहुंचती है. तो A डैश इक्वल टू v2t यानी t बराबर BB डैश बाई v1, t इक्वल टू A डैश बाई v2. ये हमारा हो गया. अब हमें यह पता करना है कि नया न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसकी पोजीशन क्या है. इसके लिए A को सेंटर मानकर और AA डैश को रेडियस मानकर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और B से एक टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर पर ड्रॉ किया जाता है और यह A डैश पर टच करती है. तो A डैश B डैश इस वेव फ्रंट AB की न्यू पोजीशन है. निश्चित ही यह जो है AB वेव फ्रंट का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है. क्लियर. अब हमें इसको कंफर्म करना है कि वाकई
ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑफ द ए बी। तो ये कैसे होगा? ए और बी के बीच में किसी भी बिंदु से प्रोड्यूस होने वाली वेवलेंथ ए डैश बी डैश पर उतने ही समय में पहुंचती है जितने समय में बी से वेवलेट बी डैश पर या ए से वेवलेट ए डैश पर पहुंचती है। क्लियर? इसके लिए हम एक एज्यूम करते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट सी है, ठीक है। यहां से ए रे है, ओ डबल डैश, और यह रे जो है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। टी समय में कहां पहुंच जाती है? यह जो है पहुंच जाती है आपको कहां? ई पर। कहां पहुंच जाती है? ई पर, भाया डी से होती हुई सेपरेटिंग प्लेन पर पहुंच जाती है। तो यह जो है वाकई यह है, तो इसको एक इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे सी डी ट्रेवल की μ1 माध्यम में एंड डी ट्रेवल की μ2 माध्यम में। क्लियर? तो सी डी बाई V1 प्लस DE बाई V2 टाइम टेकन शुड बी इक्वल टू BB डैश बाई V1 बराबर AA डैश बाई V2। यानी यहां से वेवलेट उत्पन्न होकर D से होती हुई E तक पहुंचती है, तो जितने समय इसे यहां से यहां लगता है उतना ही समय B से B डैश पर लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि D से एक DF पैरेलल टू ACB, ACB के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो BF प्लस FB डैश बराबर BB डैश, दोनों तरफ V1 से डिवाइड करें, ठीक है, और BF बटा V1 प्लस FB डैश बटा V1 इक्वल टू BB डैश बटा V1। देख लीजिए BF, ठीक है। तो यहां से यदि हम ले BB डैश बटा V1, BB डैश बटा V1, तो ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या पाते हैं? BF बटा V1 प्लस FB डैश बटा V1 इक्वल टू CD बटा V1 प्लस DE बटा V2। चूंकि CD DF पैरेलल है BC के, इसलिए CD किसके बराबर होगी? BF के। तो हम लिख सकते हैं BF बटा V1 प्लस FB डैश बटा V1 इक्वल टू BF बटा V1 प्लस DE बटा V2, चूंकि CD इक्वल टू BF। तो यह और यह कैंसिल हो गया। FB डैश बटा V1 बराबर DE बटा V2। क्लियर? अब यहां देखें, FB डैश बटा V1 इज द टाइम टेकन, DE बटा V2 is the time taken. That means both having the same time. यानी F से B तक आने में वेवलेट को उतना ही समय लगता है जितना समय D से E तक आने में लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, AB B डैश
एंड एक है डी एफ बी डैश, डी एफ बी डैश आर सिमिलर, सिमिलर है। तो ध्यान से देखें, एफ बी डैश बटा बी बी डैश इक्वल टू बी डैश डी बटा ए बी डैश, ठीक है। ये हो गया आपका 4। नेक्स्ट ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल्स ए बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, सेकेंड है ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी ई बी डैश, डी ई बी डैश, ये भी सिमिलर है, आर सिमिलर। तो इसमें देखें डीई बटा ए डैश बराबर डी बी डैश बटा ए बी डैश, ठीक है। ये हो गया 5। अब ध्यान से देखें 4 और 5, इक्वेशन 4 और 5 में ये दोनों सेम है, तो लेफ्ट भी सेम होगा इसका, इसलिए एफ बी डैश बटा बी बी डैश इक्वल टू डी ई बटा ए डैश, implies that एफ बी डैश बटा बी बी डैश V1T बराबर डी ई बटा V2T, T both side cancel, then implies एफ बी डैश बटा V1 equal to DE बटा V2. Already we have given the equation 3rd. This is the same. That means this proves certainly that A dash B dash is the new wavefront, that is the refracted wavefront. This confirms the A dash B dash be the refracted wavefront of AB. Is it clear? Now we going to deduce the laws of refraction. Yes, see here. It's very simple. This is the angle of refraction. This is the angle of refraction. Angle of refraction, angle of incidence, angle of refraction. Clear? See in this, sin I equal to BB dash bata AB dash, and sin R is equal to AA dash बटा AB dash, इसलिए sin I by sin R इक्वल टू BB dash बटा AB dash into AB dash बटा AA dash is cancel, इक्वल टू BB dash बटा AA dash, BB dash इक्वल टू V1T और sin I बटा sin R इक्वल टू V1T बटा V2T बराबर V1 by V2. Now if C equal to velocity of light in vacuum, then
mu1 इक्वल टू c बाई v1 एंड mu2 इक्वल टू c बाई, और v1 इक्वल टू c बाई mu1 एंड v2 इक्वल टू c बाई mu2. Putting this value in here, तो sin I बटा sin R इक्वल टू v1 यानी c बाई mu1 बटा v2 c बाई mu2 इक्वल टू c बाई mu1 इंटू mu2 बाई c कैंसिल इक्वल टू mu2 बटा mu1, और sin I बटा sin R इक्वल टू mu2 बाई mu1 implies that mu1 sin I equal to mu2 sin R. This is the Snell's law. This is Snell's law. क्लियर? Snell's law प्रूव हो गया. अब यहां देखें ध्यान से. This is the incident ray, this is the refracted ray, and this is the normal. Similarly here, this is the incident ray, this is the refracted ray, and this is the normal. All three lie in the plane of the board. That is, lie in the same plane. That is, the both laws are deduced with the help of the Huygens wave theory. Is it clear? Thanks. आपको मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें आपको बोर्ड पर दी गई है, इससे रिलेटेड आपके फायदे के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में ऑलरेडी है. आपसे एक चीज मैं कहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला जो भी वीडियो हम लोड करें वो आपको जो है इमीडिएटली आपको सूचना उसकी मिल